mainstream media's disconnect with the mainstream. Mr. Chetan Bhagat, who is the author of 9 blockbuster books, 4 out of which 5 novels have been already adapted into successful Bollywood films. आलोचना को जीवा पूर्व आसंत जानिबा मिस्टर चेतन भगत विषय अल्प किछि। Chetan Bhagat is the author of 9 blockbuster books. 4 out of his 5 novels have already been adapted into successful Bollywood films. The New York Times called him the biggest selling English language novelist in India's history. Time magazine named him amongst the 100 most influential people in the world. And Fast Company USA listed him as one of the world's 100 most creative people in business. He is also a motivational speaker and screenplay writer. He quit his international investment banking career in 2009 to devote his entire time to writing and make changes happen in the country. Now I would like to invite Mr. Chetan Bhagat, famous writer, to come to the stage. Now I'd like to invite Mr. Chetan Bhagat on stage, please. Hello everyone. Hi, good to be here. Really nice to be here. Thank you. Which language you prefer? Hindi? Odia is difficult. I also prefer. I wish I knew it. I heard today कि आज मेरी flight में शक्ति कपूर थे actually, and I heard he's doing a Odia serial here. Yatra, something he's doing in Odia, but in Odia. Yeah, so quite interesting. Maybe one day I'll also do. बहुत कम होता है कि ऐसे टीवी चैनल वाले अपने आप को डांट लगाने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि बोला मेन स्ट्रीम मीडिया. I imagine you count yourself, your group count, OTV is it is mainstream, right? And और बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपने मुझे बुलाया बिकॉज मैं भी एक बहुत अनलाइकली मीडिया टाइप फिगर बन गया. एंड कई बार मैं अपने आप को देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हुआ है कि लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो ये मैं लव स्टोरीज ही लिखता हूँ, राइट? लेकिन फिर भी नेशनल इश्यूज़ के बारे में मेरी बातों को सुना जाता है. सो ये मैं समझने की आई ट्राई टू थोड़ी मैंने कोशिश की. जब हम छोटे थे बहुत कम लोग यहाँ पे ऐसे हैं, अब मोस्टली क्राउड इज़ यंग, बट हम दूरदर्शन पे बड़े हुए हैं. तब समाचार मतलब समाचार होता था, मतलब आपको अगर नींद नहीं आ रही समाचार लगा लो और सो जाओ. इट इज़ लाइक एक लेडी आती थी, वो एक सेम उसकी लुक 25 साल तक एकदम सेम, साड़ी की एक एक क्रीज सेम, और वो चुपचाप लिटरली खबरें पढ़ती थी और आप देख रहे हैं उसे पढ़ते हुए. आज संसद में फिर कोई काम नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट. एंड वो दे विल नेवर से एनीथिंग कंट्रोवर्शियल एक्चुअली. दे एक्चुअली यूज्ड टू जस्ट से कि आज ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इसी के साथ साथ समाचार समाप्त. और फिर हम कहते चलो अब चित्रहार आएगा. याद है कुछ है ऐसी जनरेशन यहाँ, चित्रहार एनीबडी रिमेंबर्स? माय गॉड, एवरीबडी, लॉट ऑफ पीपल. हाँ, चित्रहार वाज अ बिग डील. सो चित्रहार वाज द ओरिजिनल प्लेलिस्ट. सो दैट उसके बाद धीरे धीरे व्हेन प्राइवेट टीवी केम एंड नाउ I think OTV also has completed 20 years, so it's also come at the same time, I think after Gulf War. And I remember that the media had enormous power. So many times media has changed governments. Of course people also contribute and opposition also contributes, lekin definitely it's we mainly had a Congress government, but because of the Bofors scam, the government changed, and that scam was I think the first media scam, the scam that became big in the. I'm sure पहले भी scams रहे होंगे 70s 80s में, थोड़े छोटे छोटे होते होंगे in terms of rupee amounts, लेकिन वो इतने कभी सामने आते नहीं थे.
लेकिन 90 में बोफोर्स केम एंड दैट टॉपल्ड वन गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स इन द लास्ट डेकेड तो कुछ मतलब द UPA 2 गवर्नमेंट विद द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ये वो विद 2G स्कैम इतने ज़्यादा पावर कभी देखने को मिली नहीं मीडिया की आई थिंक एंड we saw it on display and media had a lot of respect also. But cut to 2017 or even 16-15, suddenly media becomes prostitute, you know. और यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं जो एक्स आर्मी चीफ रह चुके हैं, आई थिंक जनरल VK सिंह कॉल्ड मीडिया प्रेस्टिट्यूट, वो चिपक गया एक टैग विच आई थिंक इज़ रियली अनफेयर, रियली मीन स्पिरिटेड टैग. लेकिन कहीं ना कहीं एक वो हो गया कि ये ऐसा ही है. और फिर हमारे देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे यू कैन से लिबरल, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड वन ऑफ द देश में भी, USA में भी आज द प्रेसिडेंट ओपनली ट्वीट्स दीज मीडिया गाइज ऑल लायर्स. In press conference, CNN, which is like I think a worldwide known channel, he says, "You guys are fake news. You guys are fake news." He's saying it openly, and he's getting away with it. He's politically, उनको कोई उससे नुकसान नहीं हो रहा है. ऐसे नहीं हो रहा, अरे इन्होंने मीडिया के बारे में ऐसे कैसे कह दिया. That means पब्लिक भी कह रही है कि ठीक ही बोल रहा है, राइट? नहीं तो पब्लिक बोलती अरे ये तो पॉलिटिशियन है. पब्लिक भूल गई कि ये पॉलिटिशियन है, और आज पॉलिटिशियन सही हो गया और मीडिया वाले गलत हो गए. एंड ये क्यों हुआ? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो गया, एंड इसका सोसाइटी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा. क्लियरली नुकसान नहीं होगा, बिकॉज एक मीडिया इन सम वेज इज़ अ सोर्स ऑफ पावर फॉर पीपल इन सोसाइटी. एंड अगर हम बोले कि नहीं ये लोग सब झूठ है, ये सब चोर है, ये बकवास है, सो एक्चुअली लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं. एंड आई थिंक मीडिया इज़ टेस्टिंग what happens to artists actually in country. Abhi recently Padmavati case में we saw like some people came and उन्होंने आके वो संजय लीला भंसाली को मारा वारा और ये वायलेंस हुआ. पहली बार नहीं हुआ ऐसा, लेकिन शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया इस बार, और इस बार बहुत शोर मचा. इस बार लोग थोड़े बहुत आवाज़ें उठी कि ये क्या हो रहा है. और वो इसलिए होता है क्योंकि somehow हमारी पब्लिक को लगता है कि ये कौन आर्टिस्ट लोग हैं, ये सब बॉलीवुड वाले पैसे बनाना चाहते हैं, ये सब भांड है, यू नो. वो कोई जब कई बार चारों की पिक्चर रोकी गई है, कई बार करण जौहर की पिक्चर रोकी गई है, लेकिन लोगों को ये नहीं लगता. लोगों को लगता है हाँ ठीक है, ये लोग थोड़ा बहुत हवा में उड़ते हैं, थोड़ा इनको अक्ल आएगी, ऐसे करके हम सोचते हैं. लेकिन हम लोग सिटीजन्स ये नहीं रियलाइज़ करते कि आप जिस दिन आर्टिस्ट का गला घोटने लग जाओगे उससे आप ही का नुकसान है. बिकॉज वो आर्टिस्ट कल को आपके लिए आवाज़ उठा सकता है, उसके पास एक माध्यम है जिससे कि वो पूरी गवर्नमेंट हिला सकता है. बॉलीवुड चाहे एक हफ्ते में सरकार गिरा सकता है. इफ़ द टॉप एक्टर्स इन बॉलीवुड गेट अप एंड से समथिंग कि ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, एंड इट डू दैट प्रॉपरली, द सरकार विल से अरे सर बस करो, आप प्लीज़ मत करो. बट वी हैव मेड इट पावरलेस. द रिस्क, एंड वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज दैट्स जस्ट वन स्मॉल इंडस्ट्री. द बिगर प्रॉब्लम कम्स व्हेन मीडिया की एक क्रेडिबिलिटी में, मीडिया की रिस्पेक्ट पे, सम्मान पे बहुत हिट पहुंचता है, स्पेशली इन द यंग पीपल. नॉट एवरीवन, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल नाउ से अरे यार ये मीडिया वाले आ गए, ऐसा क्यों हो रहा है. सो दैट्स व्हाट आई रियली थॉट अबाउट इट. इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस फॉर माई राइज, वन ऑफ द रीजंस इज दिस कि लोगों को लगता है कोई बचा ही नहीं है जिससे हम सुने और लोग सही बात बोल रहा है. सब इधर उधर बायस्ड हैं. मीडिया वाले किसी ना किसी की साइड लेके बैठे हुए हैं, तो हम मीडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते. या फिर इवन जो उनके और लोग थे वो भी, और एक्टिविस्ट भी पॉलिटिकल हो गए हैं. अगर आप अन्ना हज़ारे की क्लास देखें, उन सब की प्लेसमेंट हो गई है. सब लोग जो रामलीला मैदान में ए पॉलिटिकल बैठे थे कि हम देश के लिए बैठे हैं, सब जो फ्रंट रो वाले थे, सब कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी में आज, विच इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट ये तो लगता है ना कि यार इनका एक एजेंडा था, और यार नहीं भी था तो बन गया, चलते चलते बन गया. और अब हम किसकी बात सुने? नाउ शाजिया इल्मी विल नेवर से एनीथिंग अगेंस्ट बीजेपी, एंड अरविंद केजरीवाल विल नेवर से एनीथिंग पॉजिटिव अगेंस्ट मोदी. मतलब ये डन डील हो गया अभी. सो वो अब आप उनकी बात को कैसे ट्रस्ट करोगे? सो मे बी दे फील कि चलो चेतन की बात सुन लेते हैं जब तक ये नहीं बिकता, यू नो.
and that's been good to me, and in fact that's when I made the decision कि यार ये because I still believe the power of the truth. You know, हमारे सारे एपिक्स, आप रामायण ले लो, महाभारत ले लो, से लेके आज तक हमेशा सत्य की विजय होती है, हमेशा सही रास्ते की विजय होती है. इसका कोई मतलब है why these books are written and why these books are still popular today. Because जब जब पाप का घड़ा भरता है वो फिर वो कृष्णा कम्स टू अर्थ, विच मीन्स कि एक सच्चाई की वापसी होती है. एंड फिर लोग रियलाइज़ करते कि नहीं यार सच की ज़रूरत है. तो मुझे लगा कि मेरे को ज़रूरत नहीं है कि मैं भी अपनी प्लेसमेंट करा लूँ किसी पार्टी में या मैं कोई हो जाऊँ. और अगर इफ़ आई जस्ट कंटिन्यू ऑन माई जर्नी विच इज़ टू टॉक अबाउट द ट्रूथ, it will lead me somewhere. I think same thing very few media houses have, but those that do will lead to something positive. Why this happened was, I think somewhere down the line the media became, see, if you're a journalist you are a liberal person, right? You believe in the power of common person, you believe in certain equality, यू बिलीव कि मॉडर्नाइज होनी चाहिए चीज़ें, यू बिलीव कि रिग्रेसिव सोच नहीं रखनी है, आगे बढ़ना है. ये एक जर्नलिस्ट बनने का एक काफ़ी आइडियलिज्म हर जर्नलिस्ट में होता है. उस चक्कर में हुआ क्या कि कहीं ना कहीं शायद राइट विंग को भूल गए वो लोग. राइट विंग भी बहुत बड़ा होता है हर सोसाइटी में, और उसको साथ लेके चलना जो मीडिया को चाहिए था वो उसने नहीं किया. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ पे इफेक्ट आया. व्हेन द इलेक्शन रिजल्ट्स केम, इट वाज ऑपोजिट ऑफ व्हाट द मीडिया वाज प्रोजेक्टिंग. वेदर वी रिमेंबर इट और नॉट, और वेदर वी लाइक टू से इट और नॉट, फैक्ट इज अ लॉट ऑफ इंग्लिश मीडिया वाज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर. मतलब देयर वाज नॉट वन पॉजिटिव स्टोरी ऑन मोदी इन द इंग्लिश मीडिया बिफोर से 2012, बिफोर ही बिकेम अ सीरियस कंटेंडर फॉर national politics. Modi was villain, but he had a lot of fans in real life, and that was growing. And in fact, I started writing about that. I also got attacked at that time. Ki how can you even project someone like this in a balanced way? But he had a lot of growing support. Of course, जब कोई power में आ जाता है फिर now it's not so like that. Same thing happened with Trump in the US, and it has happened in Philippines. It has happened in other places. But in Trump's case also, the New York Times, Washington Post, the biggest publication in the US, उन्होंने इतना गिराया उसको, इतना ज़्यादा गिराया. वो है भी, कारनामे भी उनके थोड़े थे ऐसे अजीब अजीब, वो मैं मानता हूँ. लेकिन द मीडियाज़ जॉब इज़ नॉट टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग एन एजेंडा. दे हैव टू से कि इस आदमी में ये गलत है, ये सही है. दैट इज़ द ट्रूथ. बिकॉज सम पीपल डिड फील ट्रम्प वॉज बेटर. इन फैक्ट दे मेड हिम कम टू पावर. बट इफ द मीडिया सेज नहीं, देखो कितना बुरा है, देखो कितना बुरा है, आज इसने ये गलत किया, आज कहीं ना कहीं पे it begins to harm. And especially with the right wing people, they just slowly became absolutely disinterested in the media. And I think they chose their own leaders, and those leaders, whether they are good or bad, time will tell. But somewhere down the line they said, ये media वाले तो हमें नहीं समझते हैं, which is very dangerous. Now what is a media person to do? Should they actually start catering to that? हो सकता है कि कुछ हमारे कट्टरवाद लोग इंडिया में हैं जिन्हें लगता है कि हिंदुओं को 6-6 बच्चे करने चाहिए. ऐसे बोल चुके हैं हमारे पॉलिटिशियंस कई. अब क्या किसी टीवी चैनल को उस बात को सपोर्ट करना चाहिए? क्या टीवी चैनल को दिखाना चाहिए कि हाँ कैसे बच्चे पैदा करो? आई डोंट नो. और डू स्टोरीज गिविंग दैट स्टोरी क्रेडिबिलिटी और नॉट? इट्स नॉट एन ईजी आंसर. बट फैक्ट इज कहीं ना कहीं दैट बैलेंस बिकेम रॉन्ग. इट बिकेम टू लेफ्ट विंग. And when society में lot of people got left out, and that's one thing. The second thing is technology. The second thing is, ये fact की बात है कि social media आने से मीडिया की ज़रूरत लोगों को कम हो गई. लोगों को लगता है अब मेरे को पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री आज किधर है, क्योंकि उसने ट्विटर पे डाला है वो कहाँ पे है. वो आज आर्मी डे परेड देखने गया है, वो ये देखने गया है, तो आप मुझे क्या बता रहे हो? राइट, मेरे को तो दिख रहा है. एक वो हो गया. राइट, मुझे तो पता है सोनम कपूर आज क्या ड्रेस पहन के पार्टी में गई है, तो आप मुझे क्या दिखा रहे हो? सो एक अल्टीमेटली जो मीडिया एक अकेला पर्दा था दिखाने के लिए दुनिया में क्या हो रहा है, वो अब अकेला नहीं रहा है. देयर आर अदर वेज टू फाइंड आउट
what is happening in the world. Even if I never check a newspaper or TV, as long as I have my social media, I can find out what's going on. Now, the irony is कि social media भी खबरें मीडिया से ही उठा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई रिपोर्टर नहीं बैठे ना. रिपोर्टर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में भी कोई ना कोई स्टोरी का लिंक ही होता है, कोई ना कोई मीडिया हाउस से ही लिंक होके वो बात आके डिस्कस हो रही है. लेकिन वही सोशल मीडिया मीडिया वालों को गाली भी दे रहा है कि इनको कुछ नहीं आता है. लेकिन वो एक तरह से एक पेड़ है मीडिया, उसके ऊपर इतने सारे ये वीड्स उग गए हैं, वो उसी मीडिया को चूस रहे हैं और उसी मीडिया को मार भी रहे हैं. इन तरह से दैट इज हैपनिंग. सो इट हैज़ बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैट द मीडिया नोज वॉट इट इज डूइंग, right? And I'll get to that, what it should be doing, I think. So I think because of this social media thing, because of the fact that कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स के अंदर एक बायस आ गया, चाहे बिना सोचे, दिस it ultimately led to the loss of credibility for media. And finally, initially when media started, there wasn't that much competition. Then बहुत सारा competition आने लगा, and जब competition बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर negative लोग खेलना शुरू कर देते हैं. तो सारे मीडिया वालों ने फिर अपने अपने तरीके निकाले कि कैसे हम अपनी व्यूअरशिप बढ़ाएं. किसी ने सांप ने दूध पिया वाली स्टोरीज करनी शुरू कर दी, किसी ने कोई और तमाशा शुरू कर दिया कि पीके फिल्म में हिंदुओं का बहिष्कार हुआ है. ऐसे एक चैनल है, वो उस पर रोज़ आता था, सुदर्शन टीवी शायद. अपने अपने तरीके से लोग कर रहे. किसी टीवी चैनल ने सोचा कि यार इस वक्त मोदी की वेव चल रही है, अगर मैं मोदी की साइड लूँगा तो सारे व्यूअर्स मेरे पास आ जाएंगे, इसमें हर्जी क्या है? लोगों को मोदी पसंद है, मैं मोदी दिखाता हूँ, मोदी की तारीफ करता हूँ, लोग मेरे को देखेंगे, तो ठीक है. एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग इन सर्टन चैनल्स. आई वोंट नेम विच चैनल्स आर डूइंग व्हाट. सम सेड कि नहीं, वी डोंट लाइक मोदी, विल केटर टू ऑल द नॉन मोदी. सो द चैनल्स बिकेम पॉलिटिकल. एंड ये खिचड़ी पकने लग गई. तो अल्टीमेटली थोड़े दिन तो चला ये सब, लेकिन अल्टीमेटली एक क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ. अल्टीमेटली एक व्यूअर को लगा ये सब अपना अपना एजेंडा पे चल रहे हैं, किसी को सच की परवाह नहीं है. तमाशे के लिए कोई तमाशा दिखा रहा है, कोई इसकी साइड ले रहा है, कोई उसकी साइड ले रहा है. थोड़ी देर में दिमाग पक गया और लगा ये सब ऐसे ही हैं यार, मुझे समझ नहीं आता क्या है. अगेन हार्मफुल फॉर द मीडिया, राइट? सो सोशल मीडिया, दिस काइंड ऑफ मीडियाज ओन नेगेटिव कॉम्पिटिशन, यू नो, एंड द होल ignoring of the right wing. I think this led to the situation where we are in today, where if you say prostitute, लोग बोलते हैं हाँ ठीक कह रहे हो, सारे ऐसे हैं. But ultimately it doesn't work. Ultimately media has a big role. It will always be a huge power as long as it does certain things right. And I think the number one word to remember is credibility. When I was studying, when I am not a person who initially had a career about being famous. मैं बैंक में था एंड धीरे धीरे लोग मुझे कहने लगे सर आप सेलिब्रिटी बन गए हो. तो मैंने कोशिश की देखने की कि सेलिब्रिटी क्या होता है भाई. ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी वो होता है जिससे लोग जानते हैं, पीपल हु आर नोन. पर मैंने देखा कि सेलिब्रिटी के रिसर्च में आया कि 3 एट्रीब्यूट्स हैं. वन इज़ पॉपुलैरिटी. कौन कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, सबसे पहला मेजर पॉपुलैरिटी है. सलमान खान इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर. I am less popular than him. Someone else maybe even less than me. One is a simple measure, कितने लोग आपको जानते हैं. That's simple. The second is likability. लोग आपको कितना पसंद करते हैं, right? लोग जानते तो हैं, लेकिन सब आपको पसंद करते हैं कि नहीं पता नहीं. अब मदर टेरेसा सब जानते हैं, सब पसंद करते हैं, right? There is no problem. बाबा रामदेव कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, right? But he's very popular. You see the difference in likability. कुछ लोग फेमस हैं लेकिन सिर्फ इसलिए कि बिग बॉस पे उन्हें लड़ते हुए देखा, तो उनको लोग पसंद नहीं करते, so उनकी likability बहुत लो है. And I'm saying all this because it applies to a media channel also. Your viewer के mind में एक पिक्चर बनी हुई है, कौन सा चैनल पॉपुलर है, कौन सा चैनल we like, and then third is credibility. You may like someone, but they may not have credibility. मतलब उनकी बात का कोई वजूद नहीं है. वो हैं जैसे बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं, अगर वो बॉडी बिल्डिंग की बात करेंगे तब उनकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, बिकॉज उनकी बॉडीज़ वैसी हैं. तो वो अगर बोलेंगे डाइट ऐसे रखो, एक्सरसाइज ऐसे करो, आप सब सुनोगे हाँ वैसे करें. लेकिन अगर कोई बॉलीवुड के एक्टर्स पॉलिटिक्स की बात करने लग जाएं या उड़ीसा की ग्रोथ कैसे हो की बात करने लग जाएंगे, आप बोलेंगे इसको क्या पता है. इवन दो यू लाइक हिम, इवन दो दे आर पॉपुलर,
that is called credibility. These three parameters are what anybody in the public eye is judged on. मैं एक ये आप कह के नहीं करते, लेकिन एक माइंड में पिक्चर बन जाती है. एक मेरी बनी हुई है, एक OTV की बनी हुई है, टाइम्स नाउ की बनी हुई है, अलग अलग मीडिया वाले हाउसेस की बनी हुई है. अब पॉपुलैरिटी से पैसे बनते हैं. द थिंग इज़ दैट जितने व्यूअर्स उतनी एडवर्टीजमेंट उतने पैसे बनते हैं, राइट. तो बहुत प्रेशर रहता है कि पॉपुलैरिटी बढ़ाई जाए, राइट. और चैनल को लाइकेबल भी रखना पड़ता है, क्योंकि लोग अगर आपको लाइक नहीं करते तो फिर आपके पास एडवर्टाइजिंग नहीं आएगा, ये भी आएगा. और द प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट ऑल दिस, ये सब करते करते आप अपनी क्रेडिबिलिटी गंवा देते हो, एंड दैट्स अ बिग लॉस. और मैं आपको मीडिया के एग्जाम्पल तो लिमिटेड ही दे सकता हूँ, लेकिन अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ. मैं हमेशा चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इन्फ्लुएंस हो, मेरी आवाज़ मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, और जितने लोगों तक पहुँचती है उतना सीरियसली पॉलिटिशियंस मुझे लेते हैं, उतना सीरियसली मेरे राइटअप्स पढ़े जाते हैं बाय पॉलिटिशियंस, बाय ब्यूरोक्रेट्स, उतना स्कोप है कि मैं पॉलिसी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ. सो पॉपुलैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट कई बार पॉपुलैरिटी कैन गो द रॉन्ग वे ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल, I wanted to reach every corner of India, so I did a show called Nach Baliye, right? And that was a show about dance show, not that bad, but a lot of people said कि चेतन सर आप क्या कर रहे हो, ये आप एक लेखक हो, आप देश के मुद्दों पे बात करते हो, आप नाचने वाले शो में क्यों गए. नाउ वेरी क्लियर रीज़न था मेरा कि वो नाचने वाला शो चाय वाले भी देखते हैं, पान वाले भी देखते हैं, और कल को वो मेरा आर्टिकल देखेंगे हिंदी के अखबार में, उड़िया के अखबार में, दे मे रीड दैट आर्टिकल कि ये तो नच बलिए वाला है, पढ़ लेते हैं. लेकिन मेरे को उसके जूते भी बहुत पड़े कि हम इसको कैसे सीरियसली ले लें, अब ये तो नच बलिए में जाता है. अब मैंने बड़ा समझाने की कोशिश की कि भाई कोई जा ही सकते हो, लाइफ में सारे सीरियस तो नहीं होते ना हर वक्त. अब डॉक्टर की शादी होती है तो डॉक्टर डांस करता ही होगा ना, कि वहाँ पे सर्जरी करता है, राइट. सो बट ऑब्वियसली इफ़ आई डू 10 नच बलिएज, और इफ़ आई जॉइन बिग बॉस हाउस, देन आई विल लूज ऑल द क्रेडिबिलिटी, इवन दो इज जस्ट अ शो. वहाँ भी ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है जैसे यहाँ पे है. सो आई हैव टू बी केयरफुल टू नॉट पुश द पॉपुलैरिटी टू हर्ट क्रेडिबिलिटी. Eventually I decided that the most important thing is credibility. If you have credibility, आपको ultimately profit भी मिल जाएगा, आपको popularity भी मिल जाएगी, आपको likability भी मिल जाएगी, लेकिन वो credibility नहीं खोनी है. और वो कैसे आएगी? वो सिर्फ एक very clear purpose से आएगी. 3 तरह के मीडिया चैनल्स होते हैं, 450 या कुछ इंडिया में मीडिया चैनल्स हैं. या तो किसी बिजनेस से अलाइंड है, और वो ऐसे कि किसी का रियल एस्टेट बिजनेस है, उसका चैनल चल रहा है ये वो, या फिर पॉलिटिकल माउथ पीसेस हैं. मैंने मैम से आते ही ये पूछा, एक्चुअली बिफोर आई न्यू मैम, आई नो हर हस्बैंड फॉर many years and he is one of the more sensible politicians. The only non-sensible thing he has done is he is in politics, but otherwise he is very sensible, because you meet him and आधा घंटा बात करो, he talks so much sense, and then like मैंने कहा आप यहाँ कर क्या रहे हो, बट ही इज़ लाइक किसी को तो रहना है ना दंगल में. सो ही इज़ इन द दंगल एंड गॉड ब्लेस हिम, एंड आई थिंक ही विल डू वेरी वेल. बट द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हर वाज दिस कि ये कैसा सेटअप है, हाउ डज इट वर्क. डजंट योर हस्बैंड से कि ज़रा मेरी पार्टी वालों ने गड़बड़ कर दिया, ज़रा करो वाइट वॉश, कह दो इतने बुरे भी नहीं हैं, गलतियाँ हो जाती हैं. बट शी सेड देयर इज़ नथिंग डूइंग, आई डोंट डू इट, and that is why we are number 1 for 20 years, right? So, and I kept grilling her. At lunch I kept asking, नहीं लेकिन अगर suppose करो ये हो गया, अगर ये हो गया, अगर election आ गए, अगर ये, she's like we don't do it. It's a very clear understanding, and that is why it has remained number 1. There is nothing wrong in being a political mouthpiece. See, as long as you say Samna in Mumbai is a Shiv Sena का अखबार, and they say also कि हम शिव सेना के हैं. So there is nothing wrong in that. I am not saying सबको एक ही जैसा होना है, लेकिन वो एक लिमिटेड ग्रोथ कर पाता है, वो एक लिमिटेड इम्पैक्ट कर पाता है. सामना एक ही दिन न्यूज़ में आता है जब वो कुछ बोल देते हैं, सारे मुसलमानों को मार दो, ऐसे कुछ तमाशे वाली लाइन बोलते हैं, तभी उनको लोग सीरियसली लेते हैं. अदरवाइज सामना का एडिटोरियल, सामना के आर्टिकल्स, नोबडी विल रियली सी इट कि हाँ ये हुआ है देश में. इट्स जस्ट उनका अपना जो फैन क्लब है वो उसके लिए है, राइट. सो दे कैन मे बी सर्वाइव, बट they are there to serve the Shiv Sena. Samna is not viable on its own. It's there only as a mouthpiece, and
that will also not survive. Neither will this tamasha survive. Ultimately, credible places will survive. Now, credible doesn't have to mean boring. And that's an issue. जब कोई TV on करता है या अखबार पढ़ता है, nobody wants to be bored. So you have to say things in an entertaining manner. You have to say things in a good way, मतलब good writing, good television programming, good quality. All that has to be there. वो तो होना ज़रूरी है. I also know कि अगर मैं सिर्फ देश को बेटर करने की बातें करता रहूँगा, सारे यूथ जो मुझे आज सुन रहा है उठ के चले जाएंगे, बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे बेटर बाद में, और वो जाके अपना यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे. मेरे केस में डबल प्रॉब्लम है क्योंकि बुक्स बच्चे पढ़ते नहीं हैं. उनके पास आज यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इतनी सारी चीज़ें हैं करने को. मैं खुद, मेरी बुक रीडिंग कम हुई है. सो हाउ कैन आई ब्लेम देम? सो फॉर मी आई हैव टू ऑल्सो एंटरटेन देम. तो अगर मैं ये बोलूँगा कि प्रॉब्लम्स इन प्राइमरी एजुकेशन इन द कंट्री, दे विल से हाँ हम नहीं पढ़ रहा है. पर अगर मैं बोलूँगा एक हाफ गर्लफ्रेंड, तो आधे लोग तो उसीलिए उठा लेते कि हाफ गर्लफ्रेंड होता क्या है. नाउ इफ यू रीड हाफ गर्लफ्रेंड, it's been out and now the movie will come. It's a story about a rural boy from Bihar whose mother runs a school and उस स्कूल में गर्ल्स नहीं आते because toilets नहीं है. And then of course he falls in love with the girl because वो गांव का है. उसकी फ्रेंड बोलती है मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, दोस्त से ज़्यादा गर्लफ्रेंड से कम, हाफ गर्लफ्रेंड, like that. But it brings out those issues. So I've tried to do it like that. But at the same time, when I wrote about the rural thing, when I talk about rural education issues, it's credible. It's not कि बस कहानी बनाने के लिए कुछ कर दिया है. It is proper research. It is properly done. We worked for the movie, we worked with the Bihar government and they were very supportive. I hope one day I'll make a movie in Orissa also and your government will be very supportive as well. Because I do try different setting for every story, not just same Delhi, Bombay. So that credibility has been something I have learned is the most vital thing for me. I was given the option, as you can imagine, to join politics, to maybe win also. I wouldn't have survived, I think, but still maybe I could have done well, maybe I would have become minister, I don't know. But something would have been lost, which is my credibility. जिस दिन मैं एक पार्टी का हुआ, उस दिन से आप चेतन की बातों को उतना सीरियसली नहीं लोगे. आप बोलोगे तो बीजेपी वाला है या कांग्रेस वाला है या आप वाला है, जो भी मतलब. So you will start looking at me differently. And I felt ये हो सकता है उससे मुझे पावर मिल जाए, कुछ और मिल जाए, लेकिन this credibility can't go away. So that has to be guarded. For OTV especially, it's been there 20 years. It doesn't take a lot, you know. In today's social media age, it won't take a lot. 3 or 4 stories, if they are seen as gadbad, if they are seen as having an agenda which is different, it will lead to a hit in credibility very fast. So guard it. जब तक एक आपका जो चैनल है उसका हर एम्प्लॉई ये बात क्लियरली कह सकेगा कि हमारा चैनल का एम क्या है, हम क्यों रोज़ सुबह ऑफिस आते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, what is that goal in mind. And if for me it is to bring about some positive change in India, then if that is truly the goal, जो भी मैं कर रहा हूँ उससे लिंक्ड है या नहीं. और अगर वो गोल कई बार टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, that means you will again risk losing your position, losing your credibility, which is just not worth it. And flip side ये है कि इतने कम लोगों की credibility है आज मार्केट में कि जो credibility कमा लेगा वो लीड करेगा. क्योंकि आज भी समझ नहीं आता कौन सा चैनल देखें, कौन से वाले, लेकिन अगर लगा कि हाँ ये ठीक बात बोलते हैं तो you will switch it on. It is true, BBC is still BBC. Not for Indian, but for international affairs, you will go to BBC. Because you know कि यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगा इधर उधर. You know, somehow they've been able to keep that, maintain that balance well, right? Or CNN is still CNN. And some, so that is also there. कि जो कुछ लोग जो who will stick to that and be not boring, you know, not कि एकदम ही आप दूरदर्शन type boring हो जाओ. There is a sweet spot. That is the thing. You are fairly interesting, you're not boring, but you are very credible. ऐसे sensational बातें नहीं करनी या किसी का unfairly किसी को like praise नहीं करना, unfairly किसी को criticize नहीं करना. I think that will go a long way.
So yeah, the scope is there. It's challenging times. ज़माना बदल भी रहा है, and of course technology is changing and all that. But keep the search for the truth. जो रामायण में लिखा है, जो महाभारत में लिखा है, वो आज भी वैलिड है कि जो सत्य की ही एंड में जीत होती है. So just stick to that. Thank you so much. I think now ma'am will come. Yes. So can I welcome, please? Thank you, Mr. Chetan Bhagat. Thank you for your awesome speech. ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଜଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମିଷ୍ଟର ଚେତନ ଭଗତଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରିବେ. स्मॉल क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छी मु मैम को कहबी आगू ने. Thank you, Subala. Hello. Got it. I will be asking a few questions very casually. Just a few questions, and then we'll open up the floor for questions from the audience. So my first question would be that in the recent past, हमने देखा है कि कई political जो polls हुए हैं, opinion polls for politics, almost all गलत हुए हैं. So उसका आपको लगता है कि is it because they have a bias जिसकी वजह से उन्होंने अपना खुद का बताया हो rather than looking at the reality, ground reality? एक आध जगह ऐसा हो सकता है क्योंकि इतने सारे पोल हैं, सारे के सारे शायद एक आध ऐसा हुआ हो कि हाँ भाई मंत्री जी देखो आपके फेवर का पोल कराया, देखो जी कितनी सीटें चाहिए आपको, चलो कल हम निकालते हैं, तैयार है. बट आई थिंक ज़्यादातर क्या होता है, मेरा ये व्यू है बिकॉज आई मेट सम पीपल जो ये नंबर्स करते हैं और उनको बड़ा दुख होता है, कई बार वो बायस नहीं होता पर उन्होंने सच्ची में वही रिजल्ट निकाला होता है कि एक तो कुछ चुनावी नतीजे का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली यूपी जैसे जहाँ 2 से ज़्यादा पार्टियाँ हो जाती हैं, वहाँ पे वोट 4 में बट रहा है और 2-3% से बहुत सीटों का फ़र्क पड़ता है. और पोलिंग का ये जो प्रिडिक्शन का सिस्टम ऐसे नहीं होता कि ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके पूछते हैं, वो जा नहीं सकते, वो लोगों से पूछते हैं और उससे एक वोट शेयर एस्टिमेट करते हैं कि 25% लोग बीजेपी को देंगे, 20% अखिलेश को देंगे, सपोजिंग ऐसे आया, या 30 देंगे, और उससे वो कोशिश करते हैं कि कितने सीटें बनती हैं बेस्ड ऑन पास्ट, कि भाई अगर 25% वाले को इतनी सीटें मिली थी, ये वो मैथमेटिकल मॉडल लगाते हैं. वहाँ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कि वो पॉकेट्स में वोट ना मिले, और वो क्योंकि इनफैक्ट दैट हैपेंड इन द यूएस ऑल्सो. हिलरी गॉट मोर वोट्स देन ट्रम्प, बट हिलरी को 1-2 स्टेट्स में 75% वोट मिल गए और बाकी जगह पे 40 मिले और वो ट्रम्प वहाँ पे जीत गया, जबकि ओवरऑल उसके ज़्यादा थे. सो एक तो आई थिंक द प्रिडिक्शन मेथड इज गड़बड़. दूसरा, लोग इंडिया में काफ़ी चालाक हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि ओपिनियन पोल वाले को बता देंगे कि हमने इसको वोट दिया है, वो सामने वाले की शक्ल देख के कहते हैं कि वो क्या सुनना चाहता है. तो एक टीवी चैनल को बोल दिया दे आए कांग्रेस को दे आए, हाँ बीजेपी को दे आए, और 3 चैनल आएंगे, तीनों को अलग आंसर दे देंगे कि उनको लगता है कि भाई एक को देंगे, कल को ये चैनल वाला जाके उसको कंप्लेन करेगा, मेरे घर पे तंग करने आएंगे मेरे को, तो 3 चैनल वालों को 3 अलग अलग नाम दे देते हैं ताकि कोई भी कुछ ये ना कह सके. सो इसलिए भी होता है कि द मेथडोलॉजी इज, इट्स नॉट लाइक दे आर एक्चुअली गॉन टू द ईवीएम, so they don't have a great methodology of doing this, and I think that's what's happening, but still it should not be so much wild also. I know कि एक कहता है कि बिल्कुल स्वीपिंग एंड एक कहता है बिल्कुल ही नहीं. और फॉर एग्जांपल जब दिल्ली में आप इतना स्ट्रॉन्ग विक्ट्री हुआ था, मोस्ट पोल्स couldn't predict that should have been predicted because वो इतना ज़्यादा वोट शेयर था 56% वर्सेस 33 and 10 कि that 55 नज़र आ जाना चाहिए था, बट people didn't. So I think somewhere the methodology, it's not, अगर आप हमेशा always read the fine print of the polls. A survey done from 500 voters. 500 voters in a crores का state is nothing. So that also is happening. So basically what you're saying is, आप बोल रहे हैं कि ये दोनों का प्रॉब्लम है, एक तो है methodology का प्रॉब्लम और एक दूसरा प्रॉब्लम है कि inherent biases हैं
इनहेरेंट बायसेस Biases हैं। हैं। एक आध चैनल ने ज़रूर, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ एक चैनल जो हमेशा प्रो बीजेपी खबर चलाता है और उसका ओपिनियन पोल भी बीजेपी की फेवर में जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि भाई तुम लोग क्या चल रहा है। और वही ना, वो नज़र आने लग जाता है। वो 2-3 महीने ये पार्टी चलती है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे। या तो आप ओपनली कह दो कि हम माउथ पीस हैं, फिर ठीक है, देन वी विल सी योर थिंग एंड जज। सबसे वर्स्ट इज व्हेन यू डोंट से एंड यू आर, देन द मिसट्रस्ट बिगिंस। Thank you. My next question is, आपको क्या लगता है कि today's mainstream media has lost sight of the basics? That means जो neutrality की बात करते हैं, हम objectivity की बात करते हैं, and they focus more on editorializing news and adding opinions? या आई थिंक सो, एंड आई थिंक इंडिया का एक अलग भी स्ट्रक्चर है। इंडिया में जो नेशनल मीडिया है वो दिल्ली सेंटर्ड है, और इंडिया बहुत बड़ा देश है। तो अगर दिल्ली में एक आंधी भी आ जाएगी तो आज वो खबर बन जाएगी, और यहाँ पे कुछ 10 टाइम्स द बिगर आएगा तो 4-5 दिन बाद खबर पहुँचेगी कि हाँ। सो दैट्स देयर। ऑल्सो यू नो द मीडिया हाउसेज, द इंग्लिश मीडिया हैज़ अ लॉट मोर इन्फ्लुएंस. The TRP of Hindi TV channels, and I'm sure the same in the case is Oriya, your reach will be much bigger than in, like Hindi ka TRP can be 10 to 100 times also of that of a English news channel. लेकिन English news channel influential बहुत है। क्यों? क्योंकि नेता लोग देखते हैं, नेता लोगों को अच्छा लगता है कि मेरी इंग्लिश चैनल पे तारीफ हुई। मतलब ये एक फैक्ट की बात है कि अर्नब ने आज मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला, या मेरी तारीफ नहीं हुई तो उनको दुख होता है कि देखो ऐसे कैसे बरखा दत्त बोल रही है मेरे बारे में। दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ नाउ। नाउ इंग्लिश चैनल्स हैव टिपिकली बीन वेरी इंसेस्चुअस। ये लोग स्टीफेंस कॉलेज के, अपने 4-5 कॉलेजेस के एल्यूमनाई, वहाँ से वही लोग बार बार हायर करते रहते हैं। तो आप उन चैनल्स में जाओगे तो वो सिमिलर थिंकिंग वाले लोग हैं। एक नॉट ओनली वो दिल्ली है, दिल्ली का भी एक टुकड़ा है, वो वहाँ पे काम करता है और वो देश भर में न्यूज़ दे रहा है अपने हिसाब से, और उसका कई बार देश से कोई लिंक नहीं होता, कोई भी उससे लेना देना नहीं है। एंड थोड़ी देर वो चल जाता है, पर इवेंचुअली फिर लोगों को लगता है कि क्या हो रहा है, दिस इज, एंड दैट इज व्हाई दे गेट इट सो रॉन्ग समटाइम्स। सो इंडिया में द प्रॉब्लम इज डबल एग्जैजरेटेड बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश हिंदी डिवाइड ऑल्सो। आपके स्पीच ने, आप लास्ट स्पीच में आपने बताया कि मीडिया में रिस्पेक्ट था, मीडिया को लोग सीरियसली लेते थे, तो इसका मतलब आज ऑब्वियसली नहीं है, या आपको लगता है चेंज हुआ है? एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट आई डोंट वेस्ट योर टाइम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो आपको लगता है रियली चेंज हुआ है, या आपको लगता है इट्स द सोशल मीडिया दैट हैज़ काइंड ऑफ पुश्ड द पब्लिक टू बी मच मोर इन्फॉर्म्ड, टू बी ओपिनियनेटेड एंड एंग्री? इट्स बोथ। आई मीन, लाइक आई सेड, सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक को लगता है अब हमारे पास भी पावर आ गई है, अब हम भी गाली दे सकते हैं, अब हम भी सच बता सकते हैं। और सेंसेशनलिज्म की एक जगह होती है, यू नो, अगर एक सड़क पे एक्सीडेंट भी होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, बस हो जाते हैं। तो मेरे पास ऐसे ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, मतलब आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। अभी एक शिवाजी की स्टैचू बनने वाली थी, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि क्यों बना रहे हो, 4000 करोड़ की स्टैचू बन रही है और महाराष्ट्र में फार्मर्स मर रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई क्यों, वो एक कैनाल बना दो, आप एक नहर बना दो, उसका नाम शिवाजी नहर रख दीजिए, और वो 4000 करोड़ वहाँ खर्च दो, तो वो भी शिवाजी जी के ऊपर हो गया। पर उन्होंने फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजे कि ये जो स्टैचू बन रही है ये सोलर पावर खींचेगी। आई एम नॉट किडिंग, हाँ, एंड वो सोलर पावर पूरे बॉम्बे को इलेक्ट्रिसिटी देने वाली है। क्या स्टैचू होगी यार, कमाल की। तो और वो सुनने में लगता है कि देखो ये है कमाल, मतलब ये हो रहा है। सो ये सब जब घुल मिल जाए, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, सो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी लॉस होगा। दूसरा ये शॉर्टकट और नारद मुनि, जो कई बार एक नारद मुनि बनने का शौक कई एंकर्स को हो गया, जो जिनको काफ़ी पोजीशन मिल गई, मैं नाम नहीं ले रहा, पर ये नहीं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है भाई, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, क्यों ना बीच की बात रख के चलो आज हाथ दोस्ती करो, हाथ मिलाओ। आज तक कभी कोई न्यूज़ डिबेट में ऐसा हुआ है कि लास्ट में बोले चलिए आप सब ने ये कहा, अब आज बीच की बात ये निकलती है, चलो ये करें अब सब, और सब बोले हाँ जी यही करना है। सब लड़ते लड़ते ही हर शो खत्म हो जाता है। सो वो नारद मुनि का जो काम शुरू हो जाता है ना, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड, कि वो एक शॉर्टकट है। जब दो लोग लड़ रहे होंगे तो लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, हाँ ये क्यों लड़ रहे हैं भाई, बट अल्टीमेटली
लोगों को खड़े करना आपका एम नहीं है ना, वो लड़ाई सॉल्व करना आपका एम है. सो समवेयर डाउन द लाइन मीडिया हैज ऑल्सो लॉस्ट ट्रैक कि हम किस लिए आए थे. You know, I mean, even someone like Arnab, who I like, who's a friend of mine, and he has exposed many scams, and he has done a lot of good work. But kahin na kahin, I think once his power became very high and the popularity became very high, kahin na kahin he went overboard. वो आग लगा रखी है नीचे, you know. मतलब ठीक है यार, क्यों ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन आप ये भी तो चाहते हो ना लोग आपको सीरियसली लें. अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि अर्नब अगर शाम को टीवी पे आए और गुस्सा ना हो, आपको मजा ही नहीं आएगा. अगर आप इमेजिन करो अर्नब आए एक दिन शाम को, एक्चुअली आज देश ठीक ठाक ही चला है, तो आज मैं आपको बताता हूँ ये हो गया, ये भी इसने ठीक से काम कर लिया, ठीक है, ये भी ठीक था, ये भी ठीक. आप बोलोगे क्या हो गया, तो हमारे साथ धोखा हो गया. Why should I watch Times Now? So are you really watching news? Are you really watching journalism? Or you are enjoying the emotion? तो एक हल्का सा इमोशन ऑफ कोर्स होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे दूरदर्शन टाइप खबरें भी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ओवर भी हो जाता है कई बार, और उससे पूरे मीडिया को नुकसान हो जाता है. लोगों को लगता है तमाशा हो रहा है, वो तमाशा फील नहीं आना चाहिए, और वो शॉर्टकट है. व्यूअर्स लाने के लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो. उससे बेटर है कि आप बड़े बड़े स्टोरीज करो, आप रिसर्च करो, आप पूरी बात खोलो, और चाहे साल में 3 कमाल की स्टोरीज करो, लेकिन ऐसे करो कि लोग उससे हिल जाएं. ये आग लगा के तमाशा करना, it will not take you anywhere. My final question before I open the floor for audience questions is आपको क्या लगता है कि पब्लिक को हर information के पास हर information होना चाहिए, या is it possible that too much information to the public can have adverse consequences? Yeah, I think it's a very good question. I think at an individual level, अब phones इतने सस्ते हो गए हैं और इंटरनेट पैकेजेस और सस्ते होते जा रहे हैं और इतने टीवी चैनल आ गए हैं कि आपको टू मच न्यूज़ आ रही है, you know. और न्यूज़ का काम है कि जो गलत हुआ है, जो एक्सट्रीम, या तो कोई बहुत कमाल की चीज़ हुई, कोई ओलंपिक मेडल जीत गया, या कोई कमाल की ख़राब चीज़ हुई, मीडिया वही रिपोर्ट करता है ना. नॉर्मल चीज़ तो नहीं करेगा कि आज ओडिशा में 1 करोड़ लोगों ने खाना खाया और सो गए. मतलब एक्चुअली तो यही हुआ है, पर ये खबर नहीं है. खबर यह है कि 4 आदमी भूखे मर गए और 4 लोगों ने एवरेस्ट चढ़ लिया. दैट इज द खबर. नाउ इफ यू आर सराउंडेड बाय ऑल दिस ऑल द टाइम, इट इज़ नॉट नेचुरल. यू हैव टू फील नॉर्मल. सही, कई बार लोग, आप खबरें देखोगे तो आपको लगेगा देश का तो इतना बुरा हाल है, देश तो मतलब हमारा ख़त्म ही है, तो पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. सो देयर इज़ समथिंग टू बी सेड कि आप बहुत ज़्यादा भी खबरों में ना दो. ऐसे सारा दिन अलर्ट्स लगाए होते हैं लोगों ने, न्यूज़ अलर्ट्स वगैरह. इट्स नॉट गुड. यू शुड जस्ट स्पेंड 20-30 minutes in the morning maybe and 20-30 minutes in the evening if you like to see the news, and that's enough. Otherwise आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप रात को सो ही नहीं पाओगे, जो अक्सर मेरे साथ होता है. कई बार ऐसे आई वुड सी अर्नब शो एंड मतलब रात को नींद ही नहीं आ रही फिर उसके बाद कि ये अभी कैसे सोए, लोग इतना गुस्सा थे वहाँ पे, आप कैसे आराम से सो सकते हो. सो I'll open the floor for questions from the audience. I just have one request. Please keep your question very brief and please introduce yourself. Good afternoon. I am Dr. Girish Swai. I have 2 sharp questions for Mr. Bhagat as well as Mrs. Jagi Mangat Panda. Question to Mr. Bhagat. When the movie Guide was released, then R.K. Narayan wrote an article in Times of India, My Misguided Guide, because they totally changed the storyline and Guide was not in the same speed. I have read your books, also seen the movies. Books are far more interesting than the movies. Thank you. Because you are left with a world of imagination. Have you ever felt that your books have been not given justice in the movies? And question to Mrs. Panda, that she proved 3 myths demystified in Odisha. First of the myth that nothing happens in Odisha, she proved it that something happens in Odisha. Second, there was a proverb earlier, a successful husband is one who can earn more money than his wife can spend, and a successful wife is one who can get such a husband. Mrs. Panda proved it wrong. She earned a fortune any husband will be envious of. And third question. What is the question? The question is, question is that, does she ever feel that it is very difficult to run a TV channel with a political background in the family? That you feel that you are caught on the wrong footing? Thank you.
May I just take that question first? Yeah. Actually, the questions were not supposed to be for me. But it's okay. It's an interesting question. So let's turn the question to Chetan ji. But is it difficult? I mean, you can, because I asked her the same question, and I think she, yeah. Well, nothing is easy, as you know, when you're trying to build something. It's always a challenge. So I think it was a major challenge which we overcame. But like I say, that success is relative. You know, I can't say that after so many years I'll say, oh, I'm now successful, I can relax. So it's an ongoing challenge, I suppose. Yeah. Okay, mine is easy. See, R.K. Narayan, a lot of writers have very big egos, you know, and they're like, you will not touch what I've written, but I'm not like, I'm a people person. I like to get along. I like to work in teams. So I know filmmakers have a lot of pressure on them. You know, R.K. Narayan may not like that the songs were there in Guide, but they had to put the songs because then the movie will be a hit. And the songs of Guide are some of the best songs, outstanding songs. Now, maybe R.K. Narayan didn't like it, कि मैंने तो ये नहीं लिखे. But for me, my aim is not कि you satisfy my ego and you make this book. My aim is whatever the book's message is, that message should not be lost. Baki, it doesn't matter to me. You change one scene here, one scene there. Of course you'll have to change. You know, of course you'll have to add music. Of course you have to make it in Hindi. So all that is happening. I'm right now for Half Girlfriend, I'm co-producer. I'm making those changes myself because I'm finding it's not possible. What I've written, sometimes I can just write, I walked inside a stadium filled with people. How long it takes to write? 2 seconds. Now try shooting this. So then if he has only gone to the stadium to buy popcorn, then I can buy the popcorn on the street also. So those kind of choices are made. So I think one of the reasons I've been there in Bollywood and so many of my films have come is that I'm one of those authors who doesn't trouble the creators of the movie so much. Otherwise they say we only like to make movies of authors who are dead. They say. That's why they keep making Devdas, because he can't come and stop them. कि ऐसे क्यों किया आपने? So, but I say no, I want to see my movies while I'm still alive. So आप बनाओ, and as long as you do. And I now work with good people. They know, they have taken my book because they like the story. I said, if you have to change it too much, then don't take this, make something else. So, but then I let go. Once I give it, then I tell the director, like this current director of Half Girlfriend, Mohit Suri, is very famous for his songs. All his movies have amazing songs, all that Ashiki 2, Ek Villain. Now, if he makes a movie, there will be lots of songs. Now, I want those songs in Half Girlfriend. If I don't have it, then why am I working with him? And if he doesn't want my story, why is he working with me? So it's no longer mine when it goes to him. If you want to see the original, read the book. If you want an adaptation, it's an adaptation. It's called movie adaptation. It's not called movie remake of book. If you want to see one adaptation, you see it like that. It's okay. We made Ramayana also for TV, I'm sure. If he was okay with it, the original author of Ramayana, then I should be okay with it. All that tear coming and the magic tricks happening, I'm sure the Ramayana writer like, ये क्या दिखा रहे हो ऐसे कैसे होता है? I must say you're very practical and also diplomatic. Have you ever considered being in politics? I have considered, and I haven't considered. With your husband only I sat down because he was one of those normal looking people in politics. So I asked him in big detail, कि क्या है, what is the whole thing? And I hats off to him, only he can do. It's too much work actually, and it's totally thankless work. Totally thankless. गड़बड़ होगी. एक तो, you know, it is a, see, लेखक का एक certain, like some professions are lucky, they have a certain respect, like doctor. सुनते ही लगता है अच्छा होगा, right? Maybe he's just a plastic surgeon, you know, doing all kinds of surgeries you don't need. But doctor है भाई. ये कौन है? ये नेता है. ओह, वो प्रोफेशन ही बदनाम है. तो इमेजिन उसमें नॉर्मली ट्रीट होने के लिए भी आपको कितना काम करना पड़ेगा जस्ट टू शो कि वह सोल्जर, आर्मी ऑफिसर, अरे वाह आर्मी ऑफिसर, पॉलिटिशियन, अरे बाप रे कहाँ से. तो दैट आई फाइंड इज वेरी डिफिकल्ट. आई एम वेरी सेंसिटिव. आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट, एंड आई थिंक द वर्क इज, you have to be people person. You can't say no to people, and there are people at your doorstep, not just his, like many other leaders I've met, and they have people 5 o'clock in the morning, there are people outside your house and you cannot say no to them. You are there for them. So I don't feel I'm that person, you know. So Yes. Yes. Good evening. I'm Colonel S.K. Pade, retired from the army. Mr. Chetan Bhagat,
I'm very impressed with your speech. You Thank you. started with Doordarshan and also futuristic, what the media should be and what it was. I am also from that generations. As you know, Doordarshan was only half of these things, and when it started in the morning and in the afternoon, there was a declaration in the parliament. Information minister used to say, okay, we'll have a morning session, afternoon session, and there is a lot of applaud. Those days we have seen. Now, my main question is that, Mr. Bhagat, you are a national, international person. I have a very small questions, and for the interest of this country. Now, I have worked about 12 years in J&K. I have seen people dying. I have seen actions in J&K. What I want to say here is, when there is a militant attacks, a small isolated place, 2 militants came, they do some devastation, and it is shown multiple times in hundreds of channels, as you said, 350 or 450 channels, round the clock. My questions, time and again, is the same, not only to you, but also to those people, those who are responsible for this. Who is terrorizing India? It is the militants or the media? Please don't mind. No, I am a very ardent admirer of media. Okay. Second thing. Actually, just 1 minute. I would like you to add to this also, Mr. because it's Bhagat, just 1 minute related to it. Recently, I've talked to many people, including the PMO, at my own personal capacity. They all agree, but nobody does it in ground. Second thing, recently we lost 8 people in Odisha in Maoist action. My question to everybody here, not only me, that ex-Maoist, but every citizen must feel sorry for them. Everybody feels sorry. But the question is that, is it the duty of the media to show the family crying, to show the parents, children crying when they are in a very helpless situation? Can't we be more little sensitive? I don't want to blame anybody. I want to educate myself and also others. Thank you so much. Okay, I think she can probably answer that question better because she must be facing these things every day in her work. There is a line. I mean, you can say, should you show it or should you not show it? Well, you cannot say that don't show it, right? If something has happened, forget, okay, you said 2 militants died, don't show it on 450 channels. Okay, fine. Let's say in Mumbai there is Taj attacks and 200 people die on VT. Should you show that then? Should we not show it then? If it's 2,000, should we show it? Is it a number game that if more than 50 people die, then you show, and if 2 people die, you don't show? It's a difficult one, you know, and it's how much is too much, I don't know how. I'm myself curious to know how they decide, and whether then you go to the next level of showing the families in grief. Obviously, you shouldn't do too much, but at the same time, I don't know how these choices are made, ma'am. I mean, No. There are no easy answers for this. If you don't show also, that's also wrong. हाँ नमस्ते माई सेल्फ सुलता देव फॉर्मर चेयरपर्सन स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड मेरा सवाल आपसे है कि आजकल प्रिंट मीडिया जो पेपर रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के चलते कहीं ना कहीं उनके पॉपुलैरिटी लूज़ कर रहे हैं, मगर हम देखा जाए तो बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट प्रिंट मीडिया में हैं। मगर आप अभी बोल रहे थे अपने स्पीच में कि हाँ कभी कभी हम लोगों को बहुत अंदर जाके ऐसे रिसर्च करना चाहिए। जो लोग रिसर्च करते हैं और पेपर देते हैं उनका पेपर कोई पढ़ता नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरा सवाल है, आप बोले अपने अभिभाषण में कि अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस चाहे तो पॉलिटिकल लोग या कुछ हो तो उनके अगेंस्ट में अगर कुछ बोलना चाहे तो उनके बैंड बजा देंगे। अगर ये ऐसा क्यों करेंगे? अगर करना है, अगर उनके बात सुनते हैं सभी, तो वो क्यों सोसाइटी के अपलिमेंट के लिए कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं, कुछ क्यों नहीं करें? इसका मतलब क्या है? वो जानबूझकर पॉलिटिकल लोगों का जो इमेज है वो खराब कर रहे हैं सोसाइटी में। इससे किसको फायदा है? सारे देश को कहीं फायदा हो सकता है क्या? ओके, आपने खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया एक्चुअली। सी अभी शाहरुख ने खुद कहा कि अभी उससे पूछा गया कि वहाँ गोल्डन ग्लोब पे मेरिल स्ट्रीप ने ट्रंप के खिलाफ इतना बोला, जो भी उसको फील किया ट्रंप के खिलाफ उन्होंने बोला, तो उससे पूछा कि हमारे यहाँ क्यों नहीं बोलते? तो उसने कहा आप मुझे प्लेटफॉर्म दो और मैं बोलूँगा। वो कहता है कि मैं अगर एक लाइन भी बोल देता हूँ, उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया में 4 दिन तक दिखाया जाता है कि देखो इसने ये कह दिया, देखो इसने ये कह दिया, देखो। एक ओपिनियन रखने का भी पनिशमेंट मिलता है, और वो इसलिए कि मैं कह रहा हूँ ना कि बॉलीवुड की थोड़ी गलती खुद भी है कि वो इतना डर गए कि कभी कुछ बोलते ही नहीं है। और अब
हमें भी पब्लिक को भी लगता है इनको क्यों बचाना है, इनको हम नहीं बचाने वाले। जब वो पिक्चर रोकी गई थी ये दिल है मुश्किल, और पूरी गुंडागर्दी से वो पिक्चर रोकी गई थी एंड फिर सेटलमेंट हुआ था, तो लोगों को प्रोटेस्ट, लोगों को कहना चाहिए था कि ये गलत है, पिक्चर तो रिलीज़ होगी। जब एक सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दी पिक्चर, एक आपने बनाया ना एक सेंसर बोर्ड, अब हर कोई हर जगह पे अपनी कोई सेना निकाल के तो नहीं बैठ सकता कि मैं भी चेक करूँगा, मैं भी चेक करूँगा। यू नो, आपने एक सेंसर बोर्ड बनाया है गवर्नमेंट ने, वहाँ जाके आपकी पिक्चर पास हो गई, कोई नहीं रोक सकता उसके बाद उससे, और आप किसी को डरा धमका रहे हो, बट पीपल डिडंट कम इन देयर सपोर्ट, तो वो डर गए। सो आई थिंक दैट इज़ वाई व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि देयर इज़ अ पावर दे हैव एंड दे शुड से मोर। आई से कई बार मुझे डांट भी पड़ती है कि आप क्यों ट्वीट कर रहे हो अभी ऐसे, आपको नहीं कहना चाहिए, आपकी पिक्चर में कुछ गड़बड़ हो गई तो, बट for me it's still difficult because I'm a writer, so I have to say things. So, and I think in-depth stories, there is a, it's not true that people who do in-depth stories don't have an audience. It is true though कि resources कम हो रहे हैं। एक अच्छी स्टोरी करने के लिए काफ़ी पैसे लगते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं 8-10 दिन कहीं बिता के, फिर हो सकता है कि बस स्टोरी में कुछ निकले भी ना, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कोई स्कैम हो रहा है, पर आप 10 जगह ट्राई करोगे तो एक स्टोरी निकलती है। एंड कहीं ना कहीं शॉर्टकट लेने का सिस्टम आ गया अभी कि भाई शॉर्टकट काफ़ी है, क्यों असली खबर लाना, बैठ के लोगों को 4-6 बड़े लोगों को बिठा के उनको आपस में झगड़ा करवा दो, लोग देखने लग जाएंगे, पर वो खबर नहीं हुई। कहीं ना कहीं वो आप एक एंटरटेनमेंट शो ही बना रहे हो, एक रियलिटी शो बना रहे हो कि देखो 6 लोग लड़ रहे हैं, बट आई थिंक चैनल्स हु डू गुड वर्क दे विल बी बैक, समवन हैज़ टू बिलीव कि भाई नो, वी विल डू अ बैलेंस, वी विल डू सम तमाशा but we'll do some real stories also. You can at least have a balance. I'm not saying कि आप पूरा तमाशा बंद करो, शायद तमाशे के बिना आज गुजारा नहीं है, लेकिन if you do 100% तमाशा and no real stories, that's going to harm you. The lady in green there, she's been waiting to ask. Yeah. Yeah. Hello Chetan, hello ma'am, hello to everyone. Welcome to Bhubaneswar, Chetan. Thank you. And you outlined in your speech that being a celebrity, people may like you or they may hate you also. So you may be getting a lot. So, you know, when I come to places like this, there's a lot of love. There may be out of 100,000 people come every day on the internet, it will seem like a lot. So I try to put it in perspective, you know. So. Let's go to the back benches and let's make this the last question. Okay. The gentleman there, yeah. Back benches, yeah. Thank you, ma'am. Good evening, sir, and good evening, everybody. I'm Siddharth Amram. I'm an electrical engineer. Sir, my question is regarding the buzzword among the youth, startup. Sir, my friends are having always this argument. Sir, do you think the startup culture in our country is actually mature enough for all of us to jump into it, or it's just the media or the politicians are actually using the youth to be in there so that they can use the youth ki, yeah, we are doing something for the youth. Do you think, sir, is it really the India is grown up enough for all of us to jump into the startup thing, or it's just a cooked up media thing and the politicians are like scamming us? I don't think it's a cooked up media. I think of course we are not like Silicon Valley, right? We can't be. We are not that kind of a country. We are not a fully capitalist country. We don't have that history. It's for 100 reasons like that. But at the same time, I mean, I know my own classmates, I'll tell you. Like from IIT Delhi, my own college, two of my juniors started Flipkart, the Bansals. Now they are first generation. They've started Flipkart. I'm just giving the big names. Chote chote to bahut sare hain, which you may not have heard of. I know one friend of mine who started Shadi.com, and he has invested now in 55 companies, 55 different startups. He has invested. So they're chota investment, 10 lakh, 20 lakh, and out of 55, maybe 10 only will survive. What happens with startups is a lot of them fail. 80% may fail also. But if 100 are there, then 20 companies. Ola Cabs, IIT Bombay guy, Oyo Rooms, all these are, you must have heard these names. So these are not something politician or media has created. They are genuine, startups. These are very big ones, but there are a lot of chota, and they don't, not all in internet space.
anything is a startup. Even if you open a small cafe, that's also a startup. I think it's a good time to do a business in India. It's a growing country, 7-8% GDP growth. You now have all the technology available, like social media and everything, to promote your business. If you have a good product, people will talk about it. So it's there. Is it fully there? No. But it's definitely a good time, I think, to do entrepreneurship in India. I consider myself an entrepreneur. My own brand I manage and do various things. And yeah, I think it's because India is in that stage where it's a good time. Yeah. Yeah. Hello, Mr. Bhagat. Okay, let's make this the last question, yeah? Great to have you in our temple city. Thank What do you. you find more credible, mainstream media or social media? That is the first question. And the second is, do you fear for your life? These days with all the cartoonists and bloggers getting killed, do you think that what you write can have an effect on your life? I don't feel, so I'll answer the second part first. I don't feel scared. I don't know. I can't work like that. And I try not to get very personal. I'm only interested in policy. मुद्दों पे बात मैं करने की कोशिश करता हूँ. मेरा कोई interest नहीं है किसी एक आदमी को गिराना चढ़ाने में. So that way maybe it's a little better then. But at the same time, yes, I have written stuff which is pro-government, anti-government in all regimes. I think if you do it in a balanced way, it's fine. And I luckily have enough reach that, you know, people will know what I'm feeling and it matters. So the aim is not to really trouble someone. Aim is to make India a better place. So that way I don't know, maybe I don't think I need to feel that scared because I'm not attacking somebody personally, or I'm not attacking some sensibilities, I'm not attacking a religion, I'm not doing all that. Right? That's not of my interest actually. And I still trust the mainstream media more. But not all mainstream media, not all 450 channels, right? But the social media will never be. It's chat, it's chatter. The only place where I would say the social media is more credible is when, like say, the Prime Minister's handle. So then I want to know if some khabar is coming on the Prime Minister, I will see what the Prime Minister has actually tweeted or actually said. Then of course it's straight from his mouth. So that's a different level of credibility. That's the source itself. But if you say general discussions on social media, I never believe those conspiracy theories. There's still, you have to, like, there is a certain element of trust I still have in our mainstream media. So yeah. So great, I'm glad you think that the mainstream media has Yeah, hope. of course it does, of course, yeah. So let me thank you, Thank you. once again, Chetanji, for taking the time to come to Odisha. Thank you, I love it here. It was an absolute delight to have you here with us. And we do look forward to seeing you again when you come back to shoot your next film. Thank you so much, we will be here. Thank you. Mrs. Panda, this is not a question. One compliment through you I'm giving him. Let Chetan keep coming to Odisha again and again. And this is a land of great heritage. So you will have a lot Thank you, Chetan. Thank you, Jagi. of materials to write. So please do come and focus this state outside. Focus this state outside. And once again, thank you, Chetan, for coming here. Thank you, everybody. एटी शेष करुछु आमर ओटीवी फोरसाइट 2017 देश और राज्यर किछि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे निज निजर मत रखुथिबारु आज आमर अतिथि माननकु विशेष धन्यवाद ता सहित धन्यवाद देवी ओडिशार अगणित दर्शकंकु जो माने ओटीवी उपरे वर्ष वर्ष धरी भरोसा रखिछंती एवं ए दिगरे आगे जिबाकू आमकू उत्साहित करिछंती मु पुणी थे कहवाक चाहूँगी ओटीवी फोरसाइट 2017 को ये शेष करुछु तेबे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर थिले जेबीएस रॉयल टच मेन स्पॉन्सर एसआर रुंगटा सपोर्टेड बाय एसएनएम ग्रुप को सपोर्टेड बाय एमजीएम ग्रुप एवं ओटीवी फोरसाइट एसोसिएट स्पॉन्सर हेले इम्फा नालको एमरन जिंदल स्टील एंड पावर जुपिटर +2 साइंस कॉलेज टाटा स्टील पीपीएल बैदबुटी स्वराज प्रिंट पार्टनर समाज आउटडोर पार्टनर टोरेंट एडवर्टाइजर्स शेष करुछु आमर ओटीवी फोरसाइट 2017 धन्यवाद नमस्कार।